مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور فردوس عاشقوان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس فگرز بہتر ہو گئے تو یہ ہماری پوزیشن ہے جہاں تک ایکسپورٹس ہے، جہاں تک ہمارے پورے ٹریڈ فگرز ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کے بارے میں مجھے بات کرنی ہے، وہ ہے ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گے جب تک مارکیٹ ایکسیس گورنمنٹ نے مارکیٹ ایکسیس ہمارے بزنس مین کو نہ دے. تو وہاں یہ 8 مہینے میں 2 ایریاز میں ڈیفینیٹلی ہمیں سکسیس ہوا ہے. ایک تو انڈونیشیا میں چھوٹا سکسیس ہے. 20 آئٹمس میں ہمارے انڈونیشیا کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی اور انڈونیشیا کو ہم لوگ کہیں کہ دیکھو پاکستان سمجھتا ہے کہ جو ٹریڈ ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیے تھے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اور انڈونیشین گورنمنٹ نے یونیلیٹرلی ایک کریکشن کر دیے اور وہ کریکشن ہے کہ ہمیں 20 آئٹمس کے اوپر مزید ڈیوٹی فری ایکسیس دے دیا ہے، اور وہ ہے فروٹس ہے، ایگریکلچرل پروڈکٹس ہے، ٹیکسٹائل کے پروڈکٹس ہے، یارن ہے. تو الحمدللہ وہاں بھی مل گیا. ابھی نیکسٹ کمز چائنا میں تو ہمیں بہت اچھا مل گیا ہے. اور چائنا میں جو سب سے بڑی چیز ہے یہ ہے کہ ہمیں 313 آئٹمس میں ڈیوٹی فری ایکسیس مل گئی ہے. یہ 313 آئٹمس ہیں نا، اس میں سارے جو ہم لوگ سوچ سکتے تھے کہ یہ ہم لوگ ایکسپورٹ کر سکیں گے، اس میں ٹریکٹر، ریفریجریٹرز، فرنیچر، واشنگ مشینز، فروٹس، ویجیٹیبلز، ویٹ، رائس سب ڈال دیا. ٹیکسٹائل، لیدر، پلاسٹک گڈز اور ادر انجینئرنگ گڈز. تو الحمدللہ ابھی اپرچونیٹی مل رہی ہے. تو ایک اور چیز تھی جو پہلے ایف ٹی اے میں کنڈیشن نہیں تھی، ہم لوگوں نے ابھی محنت کر کے لگائی ہے، وہ یہ ہے کہ ایف ٹی اے فیز 1 میں ہماری انڈسٹری کو نقصان ہوتا تو ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے. ابھی فیز 2 کی اگریمنٹ میں ہم لوگ نے یہ لکھ دیا ہے کہ ہمیں پاکستان کو حق ہے کہ چائنا کے وجہ سے ہماری انڈسٹری کو نقصان ہو تو سیف گارڈ میجرز ہم لوگ کر سکتے ہیں. سیف گارڈ میجرز ایک شارٹ ٹرم ایک لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم ہے تو وہ ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم لوگوں نے 180 دن کے لیے وہ روک سکتے ہیں کہ وہاں سے اور مزید سامان نہ آئے اور ہمارے انڈسٹری کو نقصان پہنچائے. تو ایک تو یہ، اور لانگ ٹرم ہے کہ ایک اور پروسیس ہے جس کے تحت ہم لوگ پرماننٹلی اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایف ٹی اے تو سائن ہو گیا، ابھی کیا کرنا ہے؟ جی let him you finished. بس 1 منٹ میں پھر آپ جو سوال پوچھ لیں. سوال لے کے جائیں. میں مکمل کر دوں. ایف ٹی اے تو کر دیے ہیں، لیکن اس کے آگے کس طرح سے جانا ہے؟ آگے اس طرح سے جانا ہے کہ ابھی 17 جون ہمارے ایک ڈیلیگیشن جا رہی ہے شنگھائی. ہمارے بزنس مین، وہاں کے بزنس مین، کوریا سے بھی لوگ چائنا آنے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد میں خود جاؤں گا جولائی میں، پھر سپٹمبر میں ایک ڈیلیگیشن اور ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن نومبر میں. 2 چیزیں ہیں، ایکسپورٹس اور وہاں سے انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آنا ہے. تو یہ ہے چائنا کا. جی ابھی آپ سے ایک باری باری کر لیں. سب سے پہلے کر لیں. جی سکھر کی اور دوسری ایکسپورٹ کی منڈی تباہ ہو گئی ہے، کیونکہ آپ چند دن پہلے بھی لوگ آ کے ملے تھے. ڈرائی ڈیٹ اور ایکسپورٹ ختم ہو گیا، اربوں روپے کا سامان بلاک ہو گیا. ایف پی آر کو آپریٹ نہیں کر رہا. ہمارا سیالکوٹ سے میرا تعلق ہے،
लोगों को किसी को रिबेट नहीं मिल रही, जबकि आपने अनाउंस किया था 30% हम कैश देंगे, बाकी वो इनसे मुतलका नहीं है ना, वो FBR का सवाल हम बाद में देखते हैं। अच्छा ठीक है, जहाँ तक FBI का सवाल है मैं नोट कर लेता हूँ और मैं इनसे बात करूँगा। एक्सपोर्ट बंद हो गई है। जी सुना जी साहब जरूर जी जी। वो आपने किताब पढ़ी है, वेटिंग फॉर अल्लाह, वेटिंग फॉर अल्लाह किताब पढ़ी है। आप जब आए थे आपने काम $25 बिलियन को ले जाएंगे, लेकिन आज आपने वो किताब वाली बात की अल्लाह करेगा पैसा बढ़ जाएगा, तो किस तरह बढ़ेगी जी? अभी आप कह रहे हैं उधर ही खड़ी है जो लास्ट ईयर थी। मेरा ख्याल है कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि उन्होंने कहा कि रुपए की डिवैल्यूएशन हुई, डॉलर पे प्रेशर, रुपए पे प्रेशर आया, डॉलर बढ़ा, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ी, लेकिन जब आप उसको रुपए के साथ मैच करते हैं तो वो डॉलर में जब आप उसको इंडिकेट करते हैं तो वो सेम लेवल रहता है। वो एक्सप्लेन करने का मकसद ये है, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ी है लेकिन वो डॉलर की मद में स्टैटिक वैल्यू है, इन स्पाइट ऑफ कि आपकी 3% पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट गिरी है, और अगर आपकी एक्सपोर्ट आज भी उसी लेवल पे सस्टेन करती हैं तो इसका मतलब है कि आपने अचीव किया रुपए की गिरावट के बावजूद, दुनिया के रिसेशन के बावजूद। जी जी रिजवान साहब एक्सप्रेस। मेरा सवाल ये है कि कुछ दूसरी खबर आ रही है कि जो अदलिया के आला जजेस हैं उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया है, तो इस हवाले से अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई स्टांस सामने नहीं आया, तो गवर्नमेंट के इस पर क्या स्टांस है? क्या बाकी रेफरेंस फाइल हुआ है या इस पर क्लियर रिपोर्ट सकते हैं? ये मर्ज मेरे मुतल्लिक है, इसका इलाज मैंने करना है। और देखिए मैं उसमें जवाब आपको बड़ा क्लियर है कि वो सिंध हो, सखर हो, पाकिस्तान का कोई शहर हो जहाँ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है, अगर कहीं रिसेशन है, मसाइल है, तो हुकूमत उसको सपोर्ट देगी, उस इंडस्ट्री की रिवाइवल करेगी, और इंडस्ट्री को अपने पाँव पे खड़ा करना ही हमारा प्राइम एजेंडा है, और वो होगी। देखो एक मिनट, इसका मैं जवाब दूं। ये जजेस वाला जवाब मैं दे दूं। देखिए असल में यहाँ छुआरे और खजूरों से बाहर नहीं हम आ रहे ना, बात ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नोटिस जारी किए हैं 14 जून के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को और मुतलका स्टेक होल्डर्स को, और डेट उन्होंने फिक्स की है, और जाहिर है कंप्लेनेंट उसमें हमारी मिनिस्ट्री लॉ की तरफ से, हुकूमत की तरफ से। ये जो ताख़ीर आप कह रहे हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो एक मेन बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें सीक्रेसी जो है वो सबसे पहला प्राइम एजेंडा नंबर 1 है। तो उस सीक्रेसी को इंटैक्ट रखने के लिए इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं, इन कैमरा उनके तमाम जो है वो एक्शंस होते हैं, और जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो उस हवाले से कोई तरजीहात तय करके हमें वाज़ेह हदायत जारी नहीं करती, हम मीडिया के साथ वो शेयर नहीं कर सकते। दिस वाज द रीज़न मीडिया के अंदर वो खबरें आई, और मिनिस्टर लॉ जो है इन दोनों रेफरेंसेस के हवाले से आपको अपडेट भी करने जा रहे हैं, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हदायत की रोशनी में आगे जो वे फॉरवर्ड उनकी तरफ से आएगा हुकूमत पाकिस्तान को, वो मीडिया को ब्रीफ भी किया जाएगा, अपडेट भी किया जाएगा, क्योंकि उनकी कार्रवाई जो है इन कैमरा है। दूसरी चूँकि सियासी मसाला पहले डाल दें या बाद में? हाँ, सवाल देंगे पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों ने कल फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके अंदर उनका कहना है कि पहले हमारे करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं हुकूमत के पास, मजीद हम नहीं फंसा सकते।
नंबर 2, आप एक्सपोर्टर्स के ऊपर वो टैक्स दोबारा लगाना जा रहे हैं जो पिछली हुकूमत ने उनको रिलीफ दिया था ताकि ये सनत बच जाए। अब क्या बजट के अंदर वो टैक्स आप दोबारा बहाल करने जा रहे हैं? इसी के साथ ऐड कीजिएगा, क्या एफबीआर आपकी तजावीज को पुश नहीं कर रही? एक खबर ये भी है कि एफबीआर आपकी तजावीज को रद्द करती है। कौन सा नया टैक्स? सर 17% जो टैक्स पहले लगा हुआ था उसको आप बहाल करने जा रहे हैं इस बजट में। इसे IMF ने कोई शर्त रखी है या इस हवाले से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की? अच्छा जी अभी समझ गया। देखो जीरो रेटेड का जो कॉन्सेप्ट है ना, IMF के साथ तो ये गुफ्तगू हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। माई सेल्फ और द एडवाइज़र ऑन फाइनेंस, ये डिस्कशंस इसके ऊपर मेरे ख्याल में 6-7 दफ़ा हुई है, अभी तक फैसला नहीं हुआ। और अभी मैं लेट हो गया था, वो इस वजह से लेट हो गया था कि ये पॉइंट डिस्कस हो रहा था, अभी फैसला नहीं हुआ। मैं आपको समझा दूँ पोजीशन क्या है। पोजीशन ये है कि ये जो खास तौर पर टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ कि ज़ीरो रेटेड में इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये बिजनेसमैन को बेनिफिट है कि उन्होंने पहले सेल्स टैक्स दे और बाद में रिफ़ंड मिले। और रिफ़ंड हमें सबको पता है कि बहुत अरसे के बाद रिफ़ंड मिलता है। तो लेकिन जो गवर्नमेंट के एफबीआर की पोजीशन है कि जो लोकल सेल्स है, सेल्स लोन्स और ये सब पाकिस्तान, उसके ऊपर फुल टैक्स नहीं मिल रहा। तो मैं भी एग्री करता हूँ कि वहाँ फुल टैक्स नहीं है। मैं ये भी एग्री करता हूँ कि ये हमारे एक्सपोर्टर्स को महफूज रखना चाहिए, उनके और मज़ीद पैसे ना फंस जाए। लेकिन सवाल ये है कि इसको, ये जो दोनों चीज़ें ना, एक रेवेन्यू है और एक एक्सपोर्ट है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। आज भी मीटिंग हुई थी और जब मैं यहाँ आया हूँ और इस वक्त सब्र से अभी तक फाइनल नहीं है, फाइनल नहीं हुआ। हाँ बस ठीक, प्लीज आगे चलो। जी बताएं, जी करें बैठ के करेंगे, चेयर करेंगे जी करें। इस्लामाबाद ब्यूरो जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से आपका और ताहिर खुशनू साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बहुत कलील वक्त में अखबारात के बिल क्लियर करके अदायगियों को यकीनी बनाया। उस पर बात करनी है मैंने। अब उसमें एक प्रॉब्लम फिर हमें आ रही है कि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसियां हैं वो पैसे नहीं दे रही। अच्छा चले, लेट हिम राइट ऑफ एक्सप्रेशन। मैडम, एडवर्टाइजिंग एजेंसियां हमें पैसे नहीं दे रही, कहती है कि जी आप APNS के मेंबर नहीं। तो इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अपनी एसोसिएशन की तरफ से कि आप जो नॉन APNS अखबारात हैं उनकी अदायगियाँ थ्रू PID हमें। देखिए, पहले तो आपका जो इस्तराब था मीडिया में और स्पेशली मीडिया वर्कर्स के साथ जो पेडेंसीज चल रही थी,